آؤ میں آپ کی خدمت میں اس شہزادے کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب العزت نے میرے بیٹے حسن ابن علی کو سردار بنایا ہے. اس حسن ابن علی کی ذکر بات کرنے لگا ہوں جو وہ ہے جو علی المرتضی کا فرزند ہے, حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے, حضرت فاطمہ کا لخت جگر ہے. آج بھی جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کی قبر کے پہلو میں امام حسن کی قبر ہے. میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے حضرت عمرو ابن عاص کی روایت موجود ہے, جس کے لیے حضرت نفیع ابن حارث سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. میں اس حسن کی بات کرنے لگا ہوں جس حضرت حسن کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا فرمان موجود ہے, جس حسن نے حضرت امیر حق امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت علی الخلافت کی ہے, بیعت علی الامارت کی ہے. میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواہش ہوتی تھی, میری یہ چاہت ہوتی تھی میں اپنے نانا جان کی باتیں, اپنے نانا جان کے پرانے صحابہ, نانا جان کے پرانے بزرگ صحابہ سے پوچھوں میرا نانا یہ کیسے عمل کرتا تھا, میرے نانے کا فرمان, میرے نانے کے احکام, میرے نانا جی کی تعلیمات بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں. کھولیے جامع ترمذی, اس میں کھولیے شمائل المحمدیہ جسے شمائل ترمذی کہتے ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب اس بچے کو کہتے ہیں جس کو ماں اپنے دوسرے خامد کے گھر میں لائے لیکن وہ پیدا پہلے خامد سے ہوا ہو. حضرت ابو حالہ یہ پہلے خامد ہے. سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اور ابو حالہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جسے حضرت ہند کہتے ہیں. یہ حضرت ہند حضرت فاطمہ کا بھائی بنتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ ان کی بڑی بہن رقیہ, ان کی بڑی بہن ام کلثوم, اس کی بڑی بہن زینب رسول اللہ کی چاروں بیٹیوں کی ماں, اور اس ہند بن ابی حالہ کی ماں یہ ایک ہے. حضرت فاطمہ سمیت حضور کی اولاد کا بھائی ہے تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں میرے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ حضور کے ربیب تھے. رسول اللہ کی شکل مبارک, حضور پاک کی پارٹس آف دا باڈی مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپے حسن کے حافظ تھے. انہیں پتا تھا حضور پاک کے حسن کی چاشنی کیا ہے. بلکہ بڑے بڑے مجمعوں میں جب حضرت ہند بن ابی حالہ کو بلایا جاتا وہ رسول اللہ کی تعریف ایسے سناتے جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی چہرے مبارک کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر بتا رہے شکل مبارک کیسی, آنکھ مبارک کیسی, بھویں مبارک کیسی, ناک مبارک کیسا, کان مبارک کیسے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارکہ کا حسن بتاتے تھے. حضرت امام ترمذی لکھتے ہیں ان الحسن ابن علی فرماتے ہیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں سألت خالی, میں نے اپنے ماموں سے پوچھا گیا آپ کا ماموں کون, کہا ہند بن ابی حالہ, وہ ابو حالہ کا بیٹا حضرت ہند یہ میرے ماموں تھے. میں نے اپنے ماموں سے سوال کیا, کیوں سوال کی وجہ یہ تھی وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اللہ کی شکل کے حافظ تھے. حضور پاک کی اوصاف کو گھول کے پی لیا تھا, دماغ میں ازبر تھا. ایسے بتاتے تھے جیسے سامنے دیکھ کر کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے. میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا, میں چاہتا تھا. حضرت امام حسن کہتے ہیں میں چاہتا تھا وہ میرے لیے یہ اوصاف بتائیں. انا اتعلق بھی, میں رسول اللہ کی ان فرامین پہ حضور کی ان شکل میں اپنی شکل جیسا بنانا پسند کرنا چاہتا ہوں. یہ حسن بن علی ہے
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं प्यार करता है, मैं इन जैसी शक्ल बनाऊं, इनके अहकामात अपनाऊं, इनके फरामीन अपनाऊं, इनकी तालीमात अपनाऊं। एक आज का नौजवान है जो कहता है गुनाह कर लूं तो क्या है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, गलती कर लूं तो क्या है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, ओए खता कर दूं तो क्या है, मेरा अल्लाह बड़ी रहमत करने वाला है। ओए मेरे गाफिल भाई, तुझे जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिली, हसन के घर से जन्नत परवरिश पाती है, हसन के दर से जन्नत तकसीम होती है। ये वो हसन है जिसके बाप को हुज़ूर पाक के चौथे खलीफा होने का शर्फ हासिल है। ये वो हसन है जिसकी मां को कायनात के मोमिन औरतों की सरदारी के ताज का शर्फियत हासिल है। ये वो हसन है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। लोगों, नौजवान जन्नतियों के सरदारों की शक्ल देखनी हो, मेरे हुसैन को देख लो, मेरे हसन को देख लो। ये हसन वो है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया, इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिया बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। का लोगों, एक वक्त आएगा उम्मत मुस्लिमा में दो मुसलमान गिरोहों में खून की नदियां बह जाएंगी, जो सुलह करवाएगा वो इमाम हसन होगा। ये वो हसन है जिसको जन्नत की खुशखबरी क्या, जन्नत की ठेकेदारी का ताज हासिल है। ये वो हसन है जिसे जन्नत की चौकीदारी किया, जन्नत की मालकन की गोद में पला है, जनती नौजवानों का सरदार। इसे नहीं नजर आता अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इसे नहीं नजर आता अल्लाह ने माफ करना है, हमें नजर आता है। उनको अपनी आखिरत की इतनी फिक्र थी, हमें फिक्र नहीं। हम इमाम हसन तो छोड़िए, इमाम हसन के तकवा के सामने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे, लेकिन हमें कुछ तो अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि जिन्हें जन्नतें घर से मिली हैं, जिनके दर से जन्नत वजूद पाकर आपके और मेरे लिए बन रही है, अल्लाह नसीब फरमाए, उन्हें इतनी ज्यादा आखिरत की फिक्र है। तो हमें तो उससे बढ़ के होनी चाहिए। का अना अताअल्लक़ को भी, मैं चाहता हूं कि मैं वो चीज अपना लूं। अताअल्लक़ उर्दू जुबान में कह दो, मैं उससे ताल्लुक बना लूं, उससे अपनी रिलेशनशिप कायम कर लूं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी बातें मैं सुनता तो कहते हैं, एक दिन मुझे मेरे मामू ने बताया, फ़क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलअलउ वजहुहु तलअलुअल क़मरी लैलतल बद्र। मेरे भांजे हसन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुमने बचपन में देखा, मैंने रसूलुल्लाह के घर में तरबियत पाई है। मेरे पैगंबर वो थे फ़ख़्फ़म मुफ़ख़्ख़मन, जो मजलिस में बैठते सबसे इज्जत और तकरीम के बायस बनते। तलअलउ वजहुहु तलअलुअल क़मर, उनका चेहरा यूं चमका करता था जैसे चांद की दमक और चमक होती है, आम चांद भी नहीं, लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद जैसी चमक होती। अत्वलु मिनल मरबू व अक्सरु मिनल मुशज़्ज़ब। कोई बंदा ज्यादा ऊंचा हो तो उससे कम है, कोई ज्यादा पस्त हो तो उससे ऊंची कद रखने वाले हैं। अजीम मलहामा, पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को रब ने बारोब बनाया था। रजल शारी, हुज़ूर पाक के सर मुबारक पे बाल ऐसे थे। इन फरकत अकीकतुहु फरिक व इल्ला फला। हुज़ूर पाक के सर मुबारक पे मांग निकल आती, हुजूर निकाल लेते, सीधी मांग निकालते थे, टेढ़ी मांग का रिवाज नहीं था। ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत सीधी मांग है, निकलती तो निकाल देते वरना वैसे ही छोड़ देते। युजाविज़ु शारुहु शहमत उज़नई, जब पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाल बड़े होना होते तो कान की लौ से नीचे जाते, इज़ाहु वफ़र्रहु, यहाँ नीचे जाते, और फिर उसके बाद फरमाया अज़हरल लौन,
पैगंबर करम बड़ा खूबसूरत था। हुजूर पाक के लिए फरमाया वासिअल जबीन, हुजूर पाक की पेशानी कुशादा थी, अज़ज्जल हवाजिब, पैगंबर के बारीक खमदार ये जो आबरू थे, ये आबरू एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, जुदा जुदा थे। बैनहुमा हिर्क, इन आबरुओं के दरमियान एक रग होती थी, युद्रिकुहुल गज़ब, जब पैगंबर किसी अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्से में आते, रब्बुल इज्जत की नाफरमानी पर गुस्से में आते, वो रग भड़क उठती थी। बैनहुमा हिर्क युद्रिकुहुल गज़ब अक़नल अरनैन, पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाक मुबारक थोड़े बुलंदी माइल थे। यअलमहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा, जो अचानक देखता गौर न करता तो यूं लगता नाक बड़ी लंबी है, लेकिन यूं नहीं थी, वो तो एक नूर की नूरानियत होती जो चमक रही थी। कस्सल लहया, पैगंबर की दाढ़ी बड़ी घनी थी, हुजूर पाक की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी और बेहतरीन थी। रसूलुल्लाह सहलल खद्दैन, पैगंबर के रुखसार मुबारक जो थे वो हमवार थे, ऊंचे उठे हुए नहीं थे। आगे फरमाया फसली अल्फम, पैगंबर का चेहरा, पैगंबर का मुंह, हुजूर पाक का एतदाल के साथ फराक था। और फिर फरमाया दकीकुल मुफलिजल असनान, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दांतों में थोड़ा थोड़ा सा फासला और एतदाल के हुस्न को पैदा कर देता। दकीकुल मसरूबा, हमने हुजूर पाक को इहराम के मौके पे देखा, हुजूर पाक के नाक मुबारक से सीने मुबारक तक बालों की छोटी सी लकीर थी। और कान होना कहू जीदु दुम्यतिन फी सफाइल फिज़्ज़ा, मेरे भांजे पैगंबर की गर्दन देखनी होती तो ऐसे समझ जैसे किसी खूबसूरत मूर्ति को ढाला जाता है और उसको एक शीशे के बोतल में डालने के लिए ऐसी खूबसूरत गोलाई, ऐसी खूबसूरत सफाई, ऐसी खूबसूरत रानाई पैगंबर की गर्दन में थे। फी सफाइल फिज़्ज़ा, वो गोया चांदी के बर्तन में एक गर्दन नजर आ रही है। मुअतदिलल खल्क, पैगंबर का जिस्म बड़ा इत्तेदाल के साथ बनाया गया था। बातिनुम मुतमासिक, पैगंबर अलैहिस्सलाम के गोश्त जो थे वो जगह जो हाथ के साथ हुजूर पाक की जो जोड़ वाली थी वो पुर गोश्त नजर आती थी। बईदुम्मा बैनल मन की बहन, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों मुबारक के दरमियान में थोड़ा फासला था जिससे हुस्न बढ़ जाता था। जख्मुल करादीस, पैगंबर के जोड़ों में गोश्त भरा हुआ था। अनवरुल मुतजर्रद, अल्लाह की कसम फरमाया वो जगह जो कपड़े से बाहर रहती है, जैसे चेहरा, जैसे हाथ, जैसे पांव का जो लिबास से बाहर रहने वाली जगह होती थी, रसूलुल्लाह की अनवरुल मुतजर्रद, उस पर ऐसा नूर होता था हम हैरान हो जाते। ओए हाथ बाहर होते हैं, इन्हें कभी कभी धूप भी लगती है, इन्हें आग और धुएं से वास्ता भी पड़ता है। पांव मिट्टी में चलते हैं, इन्हें कांटे भी चुभते हैं, इन्हें पत्थर भी चुभते हैं, इन्हें तकलीफ भी होती है। फरमाया इसके बावजूद ये बाहर के जिस्म के हिस्से इतने प्यारे होते, जो लिबास के अंदर था उसके हुस्न की तो क्या बात ही थी। मौसूलुम मा बैनल लब्बती वस्सुर्रती यजरी बिशअरिन कल खत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के हिस्सों में सीने से लेकर नीचे तक बालों की एक लंबी लकीर नजर आती। आरिसदयनी वल बतनी मिम्मा सिवा जालिक, इस लकीर वाली बालों के इर्द गिर्द, इस लकीर वाली बालों के दाएं बाएं पैगंबर अलैहिस्सलाम के सीने पर, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर बाल नजर नहीं आते थे, कुदरती पैदा ही नहीं हुए थे। और आगे फरमाया अशअरुज़्ज़िराअैनी वल मनकिबैनी व आली सदर, पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाजुओं पे बाल थे, कंधों की ऊंची जगहों पे थोड़े बाल थे, सीने की वो हिस्से की जगह जो दाढ़ी मुबारक के साथ थी, गर्दन के साथ थी, उधर चंद बाल नजर आते, बाकी नहीं थी। फिर फरमाने लगे, फरमाया तवीलुज़्ज़नदैन, पैगंबर अलैहिस्सलाम के जोड़ के हुस्न की तो क्या चाशनी थी। रहमुर राहा, पैगंबर की हथेली बड़ी
बड़ी कुशादा थी। यह सखावत की तरफ इशारा है कि सखियों खुला हुआ करता है। शस्नुल कदमैनी वल कफ़ैनी, पैगंबर इस्लाम के पाँव में जो खमदार जगह थी वो ऐसे थी, यंबू अनहुमल मा, अगर इस पे पानी डाला जाता वो पानी ढलक जाया करता था, ऊपर ठहरता नहीं था। खमसानुल अखमसैन, उसका हुस्न ऐसे था कि खमदार जगह में पाँव के तलवे को बनाया ऐसे गया था। इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लआ, हुजूर पांव उठाते, पूरी कुव्वत से उठाते। कान्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, वो ऐसे चलते जैसे गहराई में, जैसे निचाई में हुजूर उतर रहे हो। वही ज़ल्तफ़ता इल्तफ़त जमीहा, किसी से बात करनी होती पूरे चेहरे समेत अपने सीने को फेरते, उसे पूरी कंपनी देते, इज्जत देते, उससे बात करते। खाली चेहरा नहीं फेरते थे बल्कि सीना साथ फेरते। इल्तफत जमीहा, उसकी तरफ पूरे होते, उससे बात करते। जरी अल मशीजा, पैगंबर की चाल तेज रफ्तार थी। जब पैगंबर इस्लाम चलते थे तो बड़ी अच्छी और सुबक रफ्तारी से चलते थे। हाफिजुत तरफ, अक्सर तौर पे हुजूर की नजरें नीची रहती थी, पैगंबर इस्लाम नीचे देखते थे। जुल्लु नजरिहिल मुलाहिजा, शर्म और हया की वजह से कहीं किसी को देखना होता तो आंखों के कोने से देखते, आंख भर के। हुजूर के देखने की आदत नहीं होती थी, पैगंबर इस्लाम यूं देखते। नजरुहु इलल अर्ज़ी अक्सरु मिन नजरिही इलस समा, पैगंबर इस्लाम की आंख मुबारक की नजर जमीन पर ज्यादा होती, आसमान पे कम होती। कभी वही उतरनी होती तो ऊपर बेकरारी से देखते, वरना ऊपर देखने की आदत नहीं थी। फिर फरमाया यसूकु अस्हाबहु, जंग में, जिहाद में, सफर में सहाबा को आगे चला देते। कभी यूं न कहते मेरे आगे क्यों चल रहे हो। यह तकब्बुर, यह गुरूर, यह तकलीफ दे मामला हुजूर में नहीं था। वह यबदाउ मन लकी बिस्सलाम, जो हुजूर पाक से मिलता हुजूर खुद सलाम में पहल फरमाता।